Okay, now let's continue to the second part where we are going to deal with the inconsistent data entries. First, obviously, you have to go to this site and download this from Kaggle. Okay, so let me close these two Excel sheets जो कि हम previously देख रहे थे, and this. Now see, you can download the data set from here. This is the data set of the suicide bombing attack, and जब आप उसको लोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से दो attackers आ जाएंगे. And here we are seeing the attacker of 30th November 2017. So data set में आपके पास ये रहा 30th November 2017 का attacker. If I am opening this क्या कहते हैं Excel sheet, and let's once go over the data and see what the file has, and then we are going to discuss it. Okay, we have the number, date, Islamic date, blast, holiday, time, city, latitude, longitude, province, location, and how many were killed, how many were injured, how many were number of how many were suicide blasts, whether it was the suicide blast or not, explosive, hospital, temperature क्या था, and temperature degree Fahrenheit में क्या था. So these are the data set. Okay, and if I go down and see how many number of records are there, so we have 496 records, 496 rows here. So this is the complete data set, in which obviously we have some not available values as well, and influencing party कौन सी थी, event क्या था, फजर Friday prayer, presidents था, Friday prayer, army, election rally and stuff. ठीक. Okay, here we need a fuzzy busy. What is a fuzzy logic or fuzzy machine mechanism? We are going to study that, and we also need the chardat so that we can क्या कहते हैं detect the data or whatever we are going to do. So let me show here to you कि when I import, let's say chardat, so see I do not chardat आपके पास already installed है, बट अगर मैं फजी वजी इंस्टॉल करती हूँ तो सी आई डू नॉट हैव फजी वजी हेयर ना, सो इंटेलिजेंस इज नॉट बीइंग शोन. सो अगर हम इधर जाते हैं, सो दिस इज द फजी वजी, एंड यू कैन यूज फजी पिप इंस्टॉल फजी वजी. अदरवाइज अगर आप पिप नहीं करना चाह रहे हो, कोई स्पीड अप है, तो गिटहब से आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स फ्रॉम वेयर यू कैन डू दिस. ओके, in order to install fuzzy wuzzy, first I have to open the Anaconda prompt, and after opening the Anaconda prompt I have to copy it, and in it I am going to paste it. Once I enter it, this is going to take some time and install the fuzzy wuzzy in my system, so that I will be able to use that after it is being installed. Okay, so fuzzy wuzzy is installed, and if I go here and now say import fuzzy wuzzy, yes, fuzzy wuzz is installed मेरे पास, and here we want that import fuzzy wuzzy. I want fuzzy wuzzy. So yes, fuzzy wuzzy is installed. Now let's say whether fuzzy wuzzy में process हुआ कि नहीं, हम देखते हैं from This is a warning. We can, it is saying that it is going to slow your PC. So in order to slow the work over it, you have to install this. I am not installing it because this is warning, so I am going to ignore it. Okay, now let's see this कि हमारे पास क्या है. देखें, inconsistencies of the data sets में क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी एंट्रीज हो सकती हैं जो एक दूसरे से inconsistent नहीं है, डिपेंडेंट है. तो सबसे पहले हम लोगों के पास जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, लेट्स डू दिस, कि हमें पांडास चाहिए, नम्पाई चाहिए, फजी वजी चाहिए, फजी वजी से प्रोसेस एंड चार्टेड चाहिए. सो मैं फजी वजी और प्रोसेस कर चुकी हूँ, पांडास और नम्पाई हम ऊपर कैलकुलेट import कर चुके थे, and I have to import charted. तो let's say I am saying import
char.dat. Okay, after importing char.dat, we have almost all the things. Now this is the thing, first we are going to see, कि मुझे ये बताओ what is the overall डेटा लुक लाइक, मतलब इससे पहले कि हम डेटा को देखें, हम अपने डेटा को पहले ये देख लें कि मेरा डेटा लिखता कैसे है. सो वी कैन ऑल्सो डू दिस विद ओपन. विद ओपन इज अ कमांड दैट ओपन सम फाइल एंड यू गिव अ पाथ देयर. सो हमारे पास आई एम गोइंग टू कॉपी दिस पाथ बिकॉज मेरे पास जो डेटा है दैट इज ऑन द सेम पाथ. तो मैं सिर्फ यहाँ से एग्जैक्टली सेम पाथ को कॉपी करूँगी एंड आई हैव टू डू व्हाट, जस्ट copy the name now. So we are going to attacker shoe side data of the CSV and let's do pasting here. Okay, invalid syntax. हाँ, because हम लोगों ने यहाँ पे ये नहीं किया कि as, और as यहाँ पे I guess हम लोग results दे रहे हैं. I am as raw data. Okay, ठीक है. So what we are going to do, we are going to say okay, open this file from this path as raw data. This is the file is going to be named as, and after opening this do what, मेरे पास एक वेरिएबल रिजल्ट के अंदर डेटा स्टोर कर दो जो क्या करे, char.dat में से डिटेक्ट करे. ठीक है, हमारे पास char.dat में से डिटेक्ट करे क्या, हमारे पास डिटेक्ट करे रॉ डेटा की 1000 फाइल्स को. ठीक है, तो जो भी फाइल है, मतलब रॉ डेटा इज एक्चुअली दी फाइल दैट वी आर डेटिंग, और इसमें से हमारे पास रीड करे व्हाट द 1000 records. No, it's at 10,000 records. That's true. The 10,000 records. 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5. Okay. Records को read करे. ठीक है. If I'm going to enter it, it is again saying expected object of the type is string, but no. Why are you doing this? Pakistan suicide attacks where 11 number CSV is the raw data. Yes. It should not be an error, but why it is giving me the error? Trace back, it is saying type error. Why it is giving me the type error? It should not give me the type error. Yes, obviously I am going to read the results, so they are supposed to be string format. Acha, I am going to search this error. Let's see what the searching of this error says. If searching doesn't work, then obviously I am going to skip it. Because this is just the way it is showing it though. So I am getting an error. Okay, change this to B. Okay, I don't know why it is telling me to convert it into the binary, but let's convert it into the binary. And no. If I say this, just read the raw data. Yes, text wrapper nahi hoga, so we have to read some thing, and must be number of records, and it is still giving me the error. Why are you giving me this error? Okay, it is saying you can also use the encode.
I am searching the Stack Overflow. I am going to do one more snippet. If it isn't working, I am going to stop it, because now encoding change करने से भी it is not working. Why it is not working in the encoding change? Because encoding change करने से generally हमारे पास डेटा आ जाता है. Okay, let's do one last thing. Okay, I am saying with open double quote, ठीक है, कॉलन. यहाँ पे let's copy the path. अच्छा, एक काम करते हैं, हमारे लैंडस्लाइड के डेटा में कोई एरर नहीं था, तो हम ज़रा लैंडस्लाइड के डेटा पे अगर एग्जैक्टली वही काम करके देखें, वट एवर इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन इट, दैट इज़ दिस के JARDET should detect what? The raw data and read the, let's say, 100 values and store it in what? Result. No, there is a problem. It is not reading the data. अगर मैं लास्ट चीज़ यहाँ पे भी कर लेती हूँ, that is encoding, और यहाँ पे हम UTF-8 encoding देते हैं, जो कि होनी नहीं चाहिए. This is the confirmed thing that data was right. So it is still not converting. Okay, let's remove this, because obviously, okay, I'm not saying the read byte. I get the error. I am not telling it to the read byte. It is. That was the problem. I wasn't doing the read byte thing. Okay. Now, obviously there are some byte array data. वो मुझे byte array का ही error दे रहा था कि आप byte array read कर रहे हो, and obviously you are not forcing me to read the byte thing. Yes. So let's give 5,000, and now let's do the print result. से देखें, इनकोडिंग एस की है, हमारे पास एस की थी, मुझे वहाँ पे अगर मैं इनकोडिंग एस की यूज़ करती तो आ जाता कॉन्फिडेंस लेवल एंड लैंग्वेज, देयर इज़ द डेटा. सो इफ़ आई गो हेयर, सो इनकोडिंग विंडोज़ 1252 थी, मे बी इन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि ये डेटा पहले से है और मैंने ये डेटा अभी डाउनलोड किया है. सो मे बी इनकोडिंग एंड लैंग्वेज चेंज होती जाए. जब आपके डेटा हमेशा अपडेट होते जाते हैं तो मे बी ये डेटा अपडेट हो गया. ठीक है, दिस इज़ जस्ट एक्चुअली टेलिंग यू हाउ योर द डेटा इज़ ना. It just gives you the insight of the data. So now let's read the data. तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, I'm saying td.read what? CSV. And in that read CSV, I'm going to copy this whole thing here. एंड इस रीड CSV के अंदर मुझे RB देने की ज़रूरत नहीं है, बट देखें इनकोडिंग चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास इनकोडिंग एस की थी. सो व्हेन आई एम रीडिंग इट, सो अब मैं इस डेटा की इनकोडिंग एग्जैक्टली वही यूज़ कर सकती हूँ. दैट इज़ व्हाट माय
जब इसकी एस की इनकोडिंग है तो इसे इनकोडिंग एस की देनी चाहिए। अच्छा एक मिनट, लेट मी डाउनलोड द डेटा अगेन बिकॉज आई थिंक देर इज़ अ प्रॉब्लम विद द डेटा आई डाउनलोडेड, बिकॉज डेटा तो इतना भी चेंज नहीं हो सकता कि वो इनकोडिंग ही चेंज कर दे। तो आई एम जस्ट फॉर द सेक, अगर ये एरर नहीं आ रहा हो, आप इनकोडिंग कभी पे भी नहीं भी करते, तो इट्स अप टू यू कि आप इनकोडिंग करें या ना करें, वो जनरली डेटा पे काम कर रहा होता है। सो आई एम गोइंग टू डाउनलोड दिस डेटा ऑन माई डेस्कटॉप again and let's actually see. I'm going to extract it here. Close. We are doing this. So let's say मैं इसकी properties में जाती हूँ and let's okay, I don't need this. I am cutting it. I am cutting this result as well. I am cutting this as well. And here what I am going to do, I am saying do with open and with open path as raw data. ठीक है, उसके बाद क्या करो, raw data के result को उठाओ और चार डेट को बोलो क्या करे, डेटा करे क्या, रॉ डेटा में कैसे रीड करे हमारे पास 1000 फाइल्स को, और यहाँ पे हमारे पास रीड बाइट करे और यहाँ हमारे पास पाथ होगा। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू कॉपी दिस पाथ हेयर, पेस्ट इट हेयर and then the file name .csv एंड ओके, ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएबल्स हमारे पास आ रहे हों, तो लेट्स से मैं यहाँ पे इस रॉ डेटा को r_ डेटा कर देती हूँ। आई एम जस्ट रीनेमिंग द वेरिएबल सो दैट आई डोंट हैव द प्रॉब्लम, एंड लेट्स से इस रिजल्ट को हम rs कर देते हैं। yes, because this, and let's print res. No, the confidence and language is same. This is the same, मतलब हमारा डेटा अपडेट हो गया है। ओके, द प्रॉब्लम इज डेटा अपडेट हो गया। अच्छा, इससे एक और चीज़ आपको डेटा साइंस में जो चीज़ जाती है इज़ वेरी गुड, you people should understand कि data set changes every time you are actually working over thing changes, so आपको अपने डेटा का पता होना चाहिए। अच्छा खैर, यहाँ पे हम अब क्या कर सकते हैं, हम read csv करते हैं, and in that read csv file I am going to copy this path, paste it here, and I am not using the encoding right now because encoding आप कर सकते हो, but obviously it is taking too much of my time, so I am just saying that के suicide। ठीक है, इस suicide में से हमने suicide attacks है, तो let's give it the name exactly। Yes, we have to enforce the encoding. I must have encoding here. Delimiter, header,
Okay, let me search one thing. Yes, okay. What is the problem is that कि ASCII encoding के हमारे पास Latin 1 सारी की सारी ASCII कोडिंग को देख लेती है, तो दैट्स व्हाई आई डिड दैट. तो मैं Latin 1 के बजाय अगर यहाँ पे ASCII लिखती हूँ तो इट इज़ आई होप सो इट शुड गिव मी एन एरर. यस, बिकॉज ASCII इनकोडिंग जनरली इनकोडिंग नहीं है. ASCII कोडिंग जितनी होती है वो हमारे पास Latin 1 के अंदर आती है. अच्छा, दीज थिंग्स यू डोंट नो, ऑब्वियसली आई एम सर्चिंग इन फ्रंट ऑफ यू पीपल. आई डिडंट रिमेंबर व्हाट टू डू. आई डिड द Latin 1 बट इट वाजंट रीडिंग इट. सो द पॉइंट इज के यू हैव टू रीड इट, यू मस्ट रीड दीज काइंड ऑफ एरर्स, बिकॉज इस तरह के एरर्स जब आप डेटा को लेंगे और कंपेटेबिलिटी में आपके पास बहुत सारी एरर्स आएंगे. सो ये Latin 1 इनकोडिंग में हमारे पास डेटा रीड हो रहा है. येस, दिस इज द हेड वैल्यू एंड वी हैव द डेटा सेट. ठीक है. अच्छा, वंस यू हैव द डेटा सेट एंड वी मस्ट नो व्हाट द इनकन्सिस्टेंसीज आर. सो हमेशा की तरह हम अपने डेटा की शेप देख लेते हैं. तो व्हाट द शेप इज़, व्हाट द सुसाइड अटैक्स में से क्या करें, हमारे पास शेप को लाकर दे दे. तो शेप इज़ 496/29. यस, द डेटा इज सेम. नाउ आपके पास सबसे पहले प्रिलिमिनरी प्री प्रोसेसिंग होती है इन विच यू मस्ट फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द डेटा सो दैट यू नो कि आप क्या करोगे. हम लोग सबसे पहले अपने डेटा को रीड करते हैं कि डेटा में है क्या. तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास कितने सिटीज़ जो हैं वो यूनिक हैं. तो हम कहते हैं सिटीज़ में क्या करें, स्टोर कर दे वट एवर द सुसाइड डेटा इज. इस सुसाइड डेटा में मेरे पास कॉलम इज़ लेट्स से सिटी कैपिटल C के साथ. So it is the city column and in city column do what, find the unique value. ठीक है. So it is going to take some time to find the unique values because obviously the data is big and it is checking the values whether the data is unique or not. So we have to wait a little. Okay, yes, it did and now let's say cities. So see, there are the cities that are unique, but check one thing here. Attack and attack, it is treating them different. Why? Encoding technique was what? ASCII. As encoding technique is ASCII, तो आपके पास क्या होता है, कैपिटल एंड स्मॉल वर्ड्स के बैकएंड पे डिफरेंट एनकोडर्स जनरेट होते हैं, डिफरेंट ASCII कैरेक्टर्स जनरेट होते हैं. सो दे टू आर डिफरेंट. सी हेयर this Karachi and this Karachi is different because after this Karachi there is a space, the first problem. And then let me see if बनो मुल्तान जैकबाबाद, मुझे कुछ और ऐसे दिख नहीं रहा जिसको मैं, हाँ ये रहा मुल्तान एंड मुल्तान. मुझे देखें, दिस मुल्तान इज़ द होल कैपिटल मुल्तान and there was one multan with the smaller value of the multan, so they are changed. So see, it is doing what, it is getting the unique values but it is actually doing the values uniquely. अच्छा, एक आपकी लैब में एक चीज़ है that is very good. So what I am going to do, I am here going to do sort these. So once I have sorting it, so it is going to, let's
डू दिस कि प्रिंट करो सॉर्टेड सिटीज़ वैल्यूज़ को। वाई? ओके, सो यहाँ से अगर हम देखें तो देखें खैबर एजेंसी एंड खैबर एजेंसीज आर डिफरेंट बिकॉज देर इज सम स्पेसिंग इशू। इस खैबर एजेंसी के बाद स्पेस है, इसके पास नहीं था, सो इट इज़ एक्चुअली सेइंग दैट दीज वैल्यूज आर डिफरेंट ना। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कन्वर्ट दीज इनटू द सेम वैल्यूज और द थिंग्स वेयर यू कैन ऑब्वियसली मेक देम वर्क इन अ सिमिलर वे। सो हेयर आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्ट्रिंग्स को लोअर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखें, आप सबसे पहले लोअर में कन्वर्ट करोगे एंड लोअर में कन्वर्ट करने के बाद यू विल स्ट्रिप इट। स्ट्रिप का फंक्शन स्ट्रिंग की लाइब्रेरी के अंदर होता है, दैट डज व्हाट इट एक्चुअली रिमूव ऑल द टेलिंग वाइट स्पेसेस इन योर डेटा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू से सुसाइड अटैक्स में से जो सिटी का कॉलम है इसमें क्या करें, इसको अपडेट करें, सुसाइड अटैक्स में से सिटी ही के कॉलम को उठाए और STR में से हमारे पास क्या कर दे, लोअर। ठीक है, सो फर्स्ट इट इज गोइंग टू कन्वर्ट द लोअर। obviously the data is big, so it is going to okay, it is done. Now let's say सुसाइड अटैक ही में से क्या करे, सिटी ले और सिटी ही में से सुसाइड अटैक्स के सिटी कॉलम में से हमारे पास जो STR है इस STR में से स्ट्रिप कर दे, तो टेलिंग जो वैल्यूज़ हैं दैट विल बी ऑब्वियसली रिमूव्ड। सो लेट्स से अब हम सुसाइड अटैक्स में से जो सिटी का कॉलम है इस सिटी का कॉलम को प्रिंट करें, तो सी एवरीथिंग इज़ कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर वन एंड स्मॉलर कन्वर्ट करने के बाद नाउ इट्स जस्ट अ थिंग दैट आई एम डूइंग अगेन जस्ट फॉर द सेक सो दैट आई नो कि ये हो गया है। सो सी नाउ अटैक इज़ ओनली वन यूनिक, जो हमारे पास पहले आ रहा था इसी तरह से खैबर एजेंसी इज़ ओनली वन द यूनिक आ रहा था, इंटेलिंग वगैरह सब। सो इससे क्या हो रहा है, जो आपके पास इनकन्सिस्टेंसी ऑफ द डेटा थी, वाइट स्पेसिस की, रिपीटिशन की, ये सारी इनकन्सिस्टेंसीज आपकी हट जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज द वन प्री प्रोसेसिंग दैट यू डिड, द इनकन्सिस्टेंसी दैट वी रिमूव, एंड द सेकेंड वन इज द फजी मैचिंग फॉर द करेक्शन इंटेंसिटी। एंड लेट्स फर्स्ट सी व्हाट ए फजी इंटेंसिटी। अच्छा, फजी में हमारे पास फजी मैचिंग क्या करती है, ये प्रोसेस है जो कि ऑटोमेटिकली फाइंड करता है उन स्ट्रिंग्स को जो आपस में वेरी सिमिलर होती हैं। एंड जैसे इन दोनों को यहाँ पे ये इनको कैरेक्टर्स के हिसाब से बहुत क्लोजर देखता है और क्लोजर देखने के बाद ये देखता है कि वेदर वी कैन मैच इट और नॉट, एंड इफ़ दे आर मैचिंग इट सो ये उनको मैच करके हमारे पास क्या करता है वो दे देता है, दैट इज़ द परसेंटेज क्राइटेरिया। सो व्हाट वी डिड द सिटी, हमने सॉर्ट करके यूनिक करके सिटीज़ को देख लिया। अगर आप अभी देखें तो हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं है, दिस इज़ व्हाट इज। अच्छा, इट डज लुक लाइक देयर आर सम रिमेनिंग इनकन्सिस्टेंसीज किस में है, DI खान में। देखिए DI खान, डेरा गाजी खान एंड DI खान, यहाँ पे आप देखें डेरा गाजी खान, डेरा आई खान, ये वाली चीज़ें एक जैसी सिमिलर हैं, बट D एंड I और I जो है वो यहाँ पे फजी वजी हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर वेरी सिमिलर एंड वी हैव टू रिमूव देम, सो वी हैव टू यूज़ फजी वजी। तो आप क्या कर सकते हैं, फजी वजी में से अपनी जो हमने अभी इंस्टॉलेशन की थी वी कैन वर्क ऑन दैट। सो हम मैचेस में क्या करते हैं, अपने इस फजी वजी वाले अपने मॉड्यूल को कहते हैं कि क्या करें, प्रोसेस एक्सट्रैक्ट करें, प्रोसेस में से एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट क्या करें, हमारे पास जो वी हैव टू राइट इट एग्जैक्टली सेम डॉट आई स्पेस खान है। ठीक है, इस DI स्पेस खान को में किस में से, सिटीज़ में से। ठीक है, और सिटीज़ में से क्या करें, लिमिट एटलीस्ट 10 देख, मतलब लिमिट क्या हो कि हमारे पास एटलीस्ट 10 चीज़ें मैचिंग हो रही हो।
एंड उसके बाद वो हमारा फजी स्कोर कैलकुलेट करे, ऑब्वियसली हाउ मच परसेंटेज दे आर मैचिंग. सो फजी वजी फर्स्ट टोकन, ओके लेट्स से फजी वजी डॉट फर्स्ट टोकन टोकन सेट रेशो. ठीक है, हम अच्छा टोकन हमारे पास सॉर्टेड वैल्यू थी तो सेट नहीं, हम लोग टोकन सॉर्टेड रेशो लेंगे और उस सॉर्टेड रेशो को कैलकुलेट करके मुझे दे दिस. उसके बाद ये मैचेस को प्रिंट करें. सो हमें ये बता रहा है कि DI खान आपस में कितने मैचेस हैं और क्या हैं, और ये मुझे उनका रेशो बता रहा है कि दीस आर द रेशोज. तो अगर हम देखें वी कैन सी द टू आइटम्स और द सिटीज़ आर वेरी क्लोज दैट DI खान. अब DI खान में स्पेसिंग हो ना हो ये तीनों एक जैसे हैं, और DG खान भी एक सेपरेट सिटी बना हुआ है यहाँ पे. सो रेशो उसका भी 88 का है. तो हम लोग DG खान को और DI खान को अपने डेरा इस्माइल खान एंड डेरा गाजी खान शुड नॉट बी रिप्लेस. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सारी रोज सिटी कॉलम्स को जो कि रेशो अबव 90 है उसे DI खान से रिप्लेस कर देंगे. मतलब क्या हुआ, देखें DI खान दोनों 100% है और DG खान 88 है. तो हम अपने पास जो रिप्लेसिंग करेंगे वो अपने पास अबव 90 में करेंगे ताकि DG खान रिप्लेस ना हो. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो रिप्लेस करेगा. वो आपसे डेटा फ्रेम लेता है, कॉलम लेता है, जो स्ट्रिंग मैच करनी है वो लेता है और मिनिमम रेशो लेता है. ठीक है, सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन एंड जिसका नाम हम यहाँ पे रखते हैं रिप्लेस मैचेस इन कॉलम. ठीक है, जो कि मैचेस हैं उन्हें हमारे कॉलम में रिप्लेस कर दे. उसमें ये मेरे पास डेटा फ्रेम लेता है. डेटा फ्रेम के बाद ऑब्वियसली जो स्ट्रिंग मैच करनी चाहिए वो किस कॉलम में मैच करेंगे. ठीक है, जो स्ट्रिंग मैच होनी चाहिए वो, एंड स्ट्रिंग मैच होने के बाद हमारे पास रेशो कितना है तो हम क्या करेंगे, मिनिमम रेशो इज इक्वल टू 90. ठीक है, सो वी आर डूइंग दिस कि हमने मिनिमम. अब क्या होगा, हम एक स्ट्रिंग्स का एरे बनाते हैं और उस स्ट्रिंग के एरे को कहते हैं कि वो कॉलम्स में से यूनिक लेकर आए. ठीक है, हम कहते हैं भाई क्या करो, DF लो. इस DF के अंदर जो भी कॉलम पास हो रहा है, ठीक है, हाँ जो भी कॉलम आप फंक्शन को दे रहे हो इस कॉलम को लो और इस कॉलम में से क्या करो, यूनिक वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो. ठीक है, वंस द यूनिक वैल्यू इज कैलकुलेटेड हम फजी वजी में मैच करेंगे टोकन रेशो को लिमिट 10 में. सो वी आर डूइंग दिस. हमने कहा कि क्या करें, फजी वजी में से हमारे पास मैचेस ला कर दे. वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग द फंक्शन ताकि जितने भी मैचेस हमें चेंज करने हो तो सारे हो जाए. ठीक है, अब ये फजी वजी वही करेगा DI खान. ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, अब ये DI खान नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने पास इसको द स्ट्रिंग टू मैच. यस, व्हाट स्ट्रिंग टू मैच. और उस स्ट्रिंग टू मैच के बाद हम यहाँ पे इसे कह रहे हैं, हाँ जो सिटीज़ है इस सिटीज़ की जगह पे जो मेरे पास स्ट्रिंग्स है उस स्ट्रिंग्स को ले. जो सिटीज़ हम पास कर रहे थे लिमिट 10 है और फजी वजी रेशो आ जाएगा. उसके बाद आप क्लोज मैच देखें तो क्लोज मैच में ऑब्वियसली हमें मिनिमम रेशो देना है. तो हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि क्लोज मैच में क्या करें, जो मैचेस हैं उसका इंडेक्स ले और उसके इंडेक्स में से क्या देखे, फॉर व्हाट, फॉर मैचेस इन द कलेक्शन. अच्छा, अगर
ठीक है, हमने क्या क्या क्लोज मैच किसको बनाए, वो ये देखे कि जो मेरे पास कलेक्शन है मैचेस की, उसमें से जो भी मैचेस की वैल्यू है वो मिनिमम रेशो से ग्रेटर देन, और मैंने लेस लिख लिया गलती से, ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम रेशो। ठीक है, उसके बाद क्या करें, रोज विद मैचेस कर ले। तो हम आप रोज विद मैचेस पे देख लेते हैं। ओके, हम अब कॉलम तो देख लिया, जिस कॉलम पे बात कर रहे थे, वैल्यूज़ भी आ गई। अब हम उस रॉज को रिप्लेस करेंगे। तो हम रॉज विद मैचेस में क्या कहते हैं, डेटा फ्रेम में से जो भी कॉलम है उस कॉलम को लेकर आओ। ठीक है, और उस कॉलम को चेक करें वेदर इट इज़ इन व्हाट क्लोज मैचेस। अगर जो भी रो है वो मेरे क्लोज मैचेस के अंदर है तो हम एक रोज क्रिएट कर दे, और उसके बाद क्या करें, डेटा फ्रेम में से लोकेशन ले और उस लोकेशन पे उन रॉज को जो कि मैचेस वाली रॉज हैं कॉलम से रिप्लेस कर दे, और उसकी वैल्यू क्या रिप्लेस कर दे, जो स्ट्रिंग टू मैच थी। ठीक है, और प्रिंट कर दे फंक्शन की एक वैल्यूज, लेट्स से कंप्लीटेड। ओके, लेट मी रीड दिस फंक्शन वंस अगेन। हमने रिप्लेस मैच कॉलम किया, डेटा फ्रेम आया, कॉलम में स्ट्रिंग टू मैच मिनिमम रेशो। अच्छा, स्ट्रिंग वैसी यूनिक हमने नहीं, फिर फजी वजी में से प्रोसेस का एक्सट्रैक्ट किया, स्ट्रिंग टू मैच आ गया, स्ट्रिंग्स आ गई, लिमिट एंड रेशो। क्लोज मैच में से मैच 0 इफ मैच इज 1 ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम रेशो। ठीक है, रोज विद मैच एंड डीएफ कॉलम इज इन क्लोज मैचेस। ठीक, हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हम इस फंक्शन को कॉलम करेंगे। हम फंक्शन कॉल करते हैं, डेटा फ्रेम देना है। हमारे पास डेटा फ्रेम यहाँ पे क्या है, सुसाइड अटैक्स। उसके बाद हमें कॉलम देना है, तो हम कॉलम की वैल्यू देते हैं, दैट वाज सिटी। और उसके बाद हमें स्ट्रिंग टू मैच देना है, d.i space Khan, and the last value is minimum ratio. ठीक है, हमारे पास रेशो कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक ब्रैकेट का इशू था। और इस ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखते हैं कि जो हमने अपने पास अभी इन सारों को यूनिक किया था और उन सिटीज़ में से हमारे पास रेशो चेंज हुआ है कि नहीं। तो हम यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ठीक है, देखें हमारे पास क्या हुआ, जो डी.आई. खान इतने सारे रिपीट हो रहे थे, इसने जितने डी.आई. खान और 90 से अबव रेशो था उन सबको मैच करके एक डी.आई. खान दे दिया। सो अगर अब मैं इस मैचेस और फजी वजी वाली लॉजिक को दोबारा से प्रिंट करती हूँ, सो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ही डी.आई. खान है, पहले जो 2 डी.आई. खान आ रहे थे वो रिप्लेस हो गए हैं एंड 1 डी.जी. खान। सो नाउ द इनकन्सिस्टेंसीज ऑफ द डेटा जो भी था दैट इज मैच्ड। सो दिस इज़ हाउ यू डू द इनकन्सिस्टेंसीज ऑफ द डेटा। मैं एक बार आपको ये फंक्शन दोबारा से समझा देती हूँ। इन दिस फंक्शन यू आर गेटिंग द डेटा फ्रेम ऑन विच यू आर वर्किंग, द कॉलम यू आर वर्किंग, इन द कॉलम यू द स्ट्रिंग यू आर सपोज टू फाइंड एंड द मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो की बात पहले हो चुकी थी। सबसे पहले आप यूनिक स्ट्रिंग फाइंड करेंगे एंड देन आप स्ट्रिंग टू मैच देंगे कि वट एवर स्ट्रिंग यू आर गोइंग टू मैच इन द डेटा सेट एंड दिस इज द स्ट्रिंग दैट यू एक्चुअली वांट टू बी रिप्लेस्ड विद। और उसके बाद आप क्या करोगे, अपना सिंपल रेशो, देन आप मैचेस में देखोगे अगर रेशो से बड़ा है तो उसको रिप्लेस करें, अदरवाइज नहीं करें। फिर वो उन रॉज को देखोगे जिन रॉज में ये क्लोज मैच की वैल्यूज़ हैं, आप उन रॉज को अपडेट करोगे और जो लोकेशन है उस लोकेशन पे जाकर कॉलम की जो भी स्ट्रिंग टू मैच वैल्यू है वो आप दे दें।
तो उसके बाद जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो सी द वैल्यूज़ आर मैच्ड और आपके पास सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं. नाउ DG खान दी है एंड DI खान दी. So this is how you actually work on the inconsistencies of the data. So this was your lab. I hope you people are understanding this. If you didn't understand, obviously we are going to have a QA session on a Zoom session that we are going to have, so ask me there. This was your whole lab that is dealing with the inconsistencies of the data. Thank you. Allah Hafiz.